بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے ماہر لکھاریوں اور مورخین نے ایسے ایسے عقل مندانہ اور دور اندیش بادشاہوں کا ذکر کیا جن کا ذکر کرتے وقت وہ لکھاری بھی قلم پکڑ کر سوچنے لگ جاتے تھے کہ آخر ان کو اتنی ذہانت اور عقل مندی اللہ نے کیسے عطا کی۔ کوئی انسان اتنی مشکلات کے باوجود کیسے اتنا سب کچھ سوچ لیتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ایسے سلطان، بادشاہ، امیر اور وزیر گزرے جن کو چند لکھاریوں نے اپنی قلم کی زینت بنایا، لیکن دنیا کا وہ واحد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھا جسے نہ صرف مسلمان مورخین نے اپنی قلم کی زینت بنایا بلکہ بہت سارے غیر مسلم لکھاریوں نے بھی اپنی قلم کی طاقت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی اور ذہانت کو بیان کیا۔ ایک چینی مورخ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عقل مندی کا ایسا دلچسپ، منفرد اور ذہانت آمیز واقعہ بیان کرتا ہے جس کو سن کر بڑے بڑے امیر، وزیر بھی سلطان کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ آخر سلطان بڑی بڑی مشکلات میں، بڑی بڑی جنگوں میں، حتیٰ کہ موت کو اتنا قریب دیکھ کر کیسے عقل مندی سے فیصلہ کر لیتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 90 سال بیت المقدس دشمنوں کے پاس رہنے کے بعد بھی فتح کر لیا، حتیٰ کہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس زیادہ تعداد میں لشکر بھی موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ایک پڑوسی بادشاہ ملنے کے لیے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے معمول کی طرح اس بادشاہ کا بھی مہمانوں کی طرح خیر مقدم کیا، پرجوش استقبال کیا اور میزبانی کا حق ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں لگی نشست پر بادشاہ موجود تھا۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا، حضور، آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جیسا کہ میں آپ کے بارے میں سنتا تھا، جانتا تھا، آپ اس سے بھی زیادہ ذہین، عقل مند اور اعلیٰ ظرف انسان ہیں۔ لیکن راستے میں نے آپ کو ایک اور بازار میں دیکھا جہاں آپ اپنے ہی تاجروں کے ساتھ بدسلوقی سے بات کر رہے تھے۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا چونک گیا اور کہا، بادشاہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو کئی دنوں سے محل کے باہر نہیں نکلا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فلاں بازار میں تاجروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا۔ اتنے میں آپ کے ساتھ بیٹھے وزیر بھی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ سلطان کئی دنوں سے محل کے اندر موجود ہے، تو پھر اس بازار میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جگہ کون تھا؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سمجھ چکا تھا کہ اب دشمن کوئی اور چال چل رہا ہے۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، حضور، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن نے ایک اور چال چلی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور دشمن کی قسمت اچھی ہے کہ اس کو میرا ہم شکل مل گیا۔ دشمن نے میرے ہم شکل کو میری رعایا کے سامنے مجھے پسپا کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہ صرف اس بازار میں نہیں ہوا ہوگا بلکہ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوگا، اور دشمن چاہتا ہے کہ میں اپنی رعایا کی نظروں میں بالکل گر جاؤں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کتابوں کے مطابق ہر انسان کے اس دنیا میں 7 ہم شکل انسان ہوتے ہیں، اور لگتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا ہم شکل آ گیا جو اس کو میرے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کو اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر جگہ وہ میرے بیس میں اس انسان کو بھیج کر نہ صرف میرے کردار کو اچھالے گا بلکہ میرے اخلاق اور میرے رتبے کو بھی خاک میں ملانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے ان کو نہ روکا تو ہماری رعایا کے ساتھ ساتھ ہماری فوج بھی بہت افسردہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس بازار میں آپ نہیں تھے بلکہ آپ کا ہم شکل کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر تمام لوگوں کے سامنے آپ کی بدنامی کر رہا تھا۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को कहा कि अपने माहिर सिपाही और जासूस भेजो और जहां भी इस हम शक्ल आदमी को देखो इसको पकड़कर फौरन मेरे पास लाओ ताकि मैं इसके पीछे छुपे दुश्मन तक पहुंच सकूं। अली बिन सफियान ने फौरी तौर पर अपने सिपाही और माहिर जासूस रवाना कर दिए और इनको हुक्म दिया कि जहां भी वो आदमी जो सुल्तान के बेस में मौजूद हो इसको फौरन पकड़कर हमारे पास ले आओ और लोगों को बताओ कि ये सुल्तान के बेस में छुपा गद्दार है। वक्त गुजरता रहा। एक दिन महल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैठा हुआ था कि वो बादशाह सैरो तफरी करके दरबार में लौटा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह थोड़े से मायूस नजर आए क्योंकि वो हम शक्ल अभी भी नहीं पकड़ा गया था। तो इस बादशाह ने कहा, हुजूर आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी, बहुत सारी जंगें लड़ी, लेकिन एक जंग जिसके बारे में मुझे अभी तक कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। सुल्तान ने कहा, कौन सी जंग? इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम फलां जंग जिसमें आपने बहुत कम सिपाहियों के साथ दुश्मन के हजारों सिपाहियों को ढेर कर दिया था। ना ही आपके पास तीर अंदाज मौजूद थे, ना ही कोई ज्यादा तादाद में सिपाही, फिर आपने इस जंग में कैसे फतह हासिल की? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अगर आप मेरे मेहमान ना होते तो इस जंग के राज के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। सुल्तान ने कहा, जंग से एक दिन पहले मुझे मालूम हुआ कि दुश्मन के सिपाही हजारों की तादाद में हैं, लेकिन मेरे पास सिपाही सैकड़ों में थे और मुझे अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। मैं जानता था कि मेरे पास सिपाहियों का ईमान मजबूत है, लेकिन तादाद बहुत कम होने की वजह से हमें शिकस्त का सामना करना होगा। इतने में मैंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम अपनी तलवारों की हर तरफ कांच के टुकड़े लगा दो और जंग की तैयारियां शुरू कर दो। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और जब जंग का वक्त हुआ तो मैंने अपने सिपाहियों को कहा कि तुम सूरज के सामने खड़े होकर अपनी तलवार चलाना। जब जंग शुरू हुई तो हमने वैसा ही किया और जैसे ही सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाली तो सूरज से निकलने वाली शुआएं जब तलवारों पर लगे हुए कांच के टुकड़ों पर टकराई तो कांच के टुकड़ों से तेज रोशनी निकलने लगी और इस रोशनी ने मुखालिफ दुश्मन सिपाहियों को अंधा कर दिया, जिसकी वजह से वो सिपाही बगैर किसी मुजाहमत के हमारे सिपाहियों की तलवार से अपनी गर्दनें कटवा बैठे। और इसी तरह हमने देखते ही देखते चंद लम्हों में दुश्मन की फौज को मिट्टी में मिला दिया और इनके कमांडर को पकड़ लिया। ये देखकर वो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर आपने अक्लमंदी की वजह से एक छोटी सी फौज से इतने बड़े लश्कर को शिकस्त देकर फतह हासिल कर ली। अलगर्ज बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह से मुतासर होकर वहां से चला गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को अपने कमरे में बुलाया और कहा, क्या वो गद्दार पकड़ा गया या नहीं? अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर इसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं। वो जहां भी नमूदार होता है अपनी चाल चल के वहां से गायब हो जाता है। ऐसा लगता है कि इसे या जमीन खा जाती है या आसमान निगल लेता है। वो इतना चालाक है कि इसको अभी तक कोई भी नहीं पकड़ पाया। और हुजूर हमारे सिपाहियों की इतलाआत के मुताबिक इस हम शक्ल आदमी ने आपकी साख्त को बुरी तरह मुतासर किया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि इस आदमी की वजह से सुल्तान की रियाया आपसे बदजन हो रही है और हत्ता के सुल्तान की फौज में भी ये लहर फैल गई कि सुल्तान अपने मकसद से हटकर अपने जाती फायदे के लिए काम कर रहा है। जब सुल्तान ने यह सारी सूरत हाल देखी तो अली बिन सफियान को कहा कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे वो गद्दार आदमी खुद चलकर हमारे पास आएगा। अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर वो कैसे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को कहा कि महल के इर्द गिर्द यह खबर फैला दो कि हम किसी कबीला पर हमला करने वाले हैं और जब हम कबीला पर हमला करने के लिए जाएंगे तो वहां मैं चंद दिनों के लिए गायब हो जाऊंगा और तुम वापस आकर ये ऐलान कर देना कि इस हमले के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दुश्मन ने अगवा कर लिया और सुल्तान के बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली। जब यह खबर वो बहरूपिया सुनेगा तो वो फौरन मेरे तख्त पर बैठकर मेरी फौज को तकसीम करने और मेरी सल्तनत को तबाह करने के लिए जरूर आएगा।
जब अली बिन सफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ये तरकीब सुनी तो इसको ये तरकीब बहुत पसंद आई और अली बिन सफियान ने इस तरकीब पर अमल किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस कबीले की तरफ जो कि सुल्तान की मनसूबा बंदी में था, इसको फतह करने के लिए चले गए। चंद दिनों के बाद अली बिन सफियान वापस महल में लौटा और ये खबर हर जगह फैला दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमले के दौरान पकड़े गए और दुश्मनों ने आपको अगवा कर लिया और हो सकता है कि सुल्तान अब इस दुनिया में जिंदा मौजूद ना हो। और ये खबर पूरे महल में जंगल में आग की तरह फैल गई। जब ये खबर हर तरफ फैली तो ये खबर इस सुल्तान के हम शक्ल आदमी तक भी जा पहुंची। वो बड़ा खुश हुआ और सुल्तान की चाल के मुताबिक वो सुल्तान बनकर महल में चंद सिपाहियों के साथ दाखिल हुआ और अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर आप कैसे बचकर आ गए? तो इसने कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पकड़ना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और अब तक सुल्तान की चाल के मुताबिक वो आदमी सुल्तान के जाल में फंस गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सफियान को हुक्म दिया कि जब बेहतरीन वक्त आएगा तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बेस में छुपे मेरे हम शक्ल को किस तरह अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर हम इसको इसी वक्त पकड़ेंगे तो इससे जो इसने मेरी बदनामी की इसकी भरपाई नहीं होगी, इसलिए बेहतरीन वक्त का इंतजार करना होगा। अली बिन सफियान सब्र करता रहा और वो सुल्तान आते ही, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बेस में छुपा था, इसने आते ही अपनी मनमानियां शुरू कर दी और चंद दिनों के बाद एक मैदान में तमाम रियाया को बुलाने का हुक्म दिया। अब अली बिन सफियान ने पूरी कोशिश की कि मालूम किया जाए कि आखिर वो क्या करने वाला है, लेकिन इसने अली बिन सफियान को कुछ नहीं बताया। फिर अली बिन सफियान ने अपने चंद जासूस छोड़े और मालूम करवा लिया कि फलां दिन वो तमाम लोगों के सामने सुल्तान के दुश्मन बादशाह यानी जिसके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्तकबिल में जंग करने वाला है, इसके साथ अमन मुआहिदा करेगा और सुल्तान की जगह इस मुआहिदे पर दस्तखत करेगा और इस मुआहिदे की रूह से इसके बाद सुल्तान इस बादशाह से ना ही कोई इलाका फतह कर सकेगा और ना ही कोई जंग कर सकेगा। जब यह खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची तो सुल्तान गुस्से से तड़प कर रह गया और कहा, जब बेहतर वक्त आएगा तो वो दुश्मन भी खाक चाटेगा और बेस में छुपा गद्दार भी जिसने मेरी बहुत बदनामी की वो भी अपने अंजाम तक पहुंचेगा। मुकर्ररा दिन पर तमाम लोग मैदान में जमा हो गए, तमाम कमानदार भी मौजूद थे। इतने में वो बादशाह जिसके साथ सुल्तान के बेस में छुपा गद्दार मुआहिदा करने वाले थे वो भी पहुंच गया। जैसे ही मुआहिदा पर दस्तखत होने लगे तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नमूदार हुए। जब तमाम लोगों ने दो सुल्तानों को एक ही वक्त में देखा तो लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि किसी को खौफ करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ हमारी चाल थी। ये बहरूपिया मेरे बेस में छुपकर मेरे मंसूबों को खाक में मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बहरूपिये को तमाम रियाया के सामने ही इसका सर काट दिया और इस बादशाह के सामने ऐलान किया कि हमारा इस बादशाह के साथ कोई अमन मुआहिदा नहीं, जब तक मेरी जान में जान है मैं लड़ता रहूंगा और इलाके फतह करता रहूंगा। और इसी तरह सुल्तान ने अपनी अक्लमंदी से न सिर्फ बेस में छुपे गद्दार को पकड़ लिया बल्कि उस गद्दार दुश्मन बादशाह को भी सबक सिखा दिया। दुश्मन कितना ही चालाक क्यों ना हो, जब वो गलत रास्ते पर होगा, गलत काम करेगा तो एक ना एक दिन अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दुरूद पाक जरूर लिखिए।